हरे कृष्णा। हमारे पिछले 2 वीडियो में हमने देखा भगवान शिव कितने करुणामय हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरणों में प्रेम भक्ति प्राप्त करना। भगवान शिव के कृपा से हम इसे प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण था कि लिंगराज भगवान ने खुद श्रील प्रभुपाद को आमंत्रण किए उनके धाम भुवनेश्वर में अपना कृष्ण भावनामृत आंदोलन का केंद्र बनाने के लिए। कृपा निधान भगवान शिव का करुणा असीम है और गुरुदेव हमें मार्गदर्शन करते हैं कैसे हम परम वैष्णव शिव शंभु के इस कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। आज के इस अध्याय में शिव तत्व के ऊपर श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज के दिए हुए कुछ शिक्षाएं और उदाहरण का चर्चा करेंगे। शिव जी का हर कोई पूजा करता है। भौतिकवादी लोग भी पूजा करते हैं और भक्त लोग भी, देवता भी पूजा करते हैं और दानव भी। हर कोई शिव जी का पूजा करता है। राक्षस राज रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और ब्रज के गोपियां भी शिव जी की उपासना करते थे। शिव जी का दूसरा नाम भोलेनाथ है क्योंकि वो बहुत भोले हैं। आशुतोष, जो अल्प से ही खुश हो जाते हैं। शिव जी हर किसी के मनोकामना पूर्ण करते हैं, चाहे कोई धन संपत्ति भोग विलास मांगे या भक्ति मांगे, शिव जी सब कुछ देते हैं। महादेव बहुत ही उदार हृदय हैं। उन लोगों की बुराइयां नहीं देखते, सिर्फ जो थोड़ा बहुत अच्छाइयां उनमें होती है उसी को ग्रहण करते हैं। इसीलिए उनको बुरे दानव भी जपते हैं और अच्छे देवता भी, और हर किसी के ऊपर शिव जी अपना कृपा करते हैं। श्रील गुरुदेव कहते हैं, Shiv is such a magnanimous, very udar. Shiv has 2 types of krupa, Sakapata krupa and Niskapata krupa. Akapata krupa. Sakapata krupa and Akapata krupa. In English you must say krupa, mercy with duplicity, Sakapata. Mercy without duplicity, pure mercy, 2 types. And those demons, the ghosts, the Rakshasas, demons, they get this Sakapata krupa. That's mercy with duplicity. And at last they are destroyed. And Vaishnavananga Shambhuji, Shiva is also a Vaishnava, so Vaishnavas also worship Lord Shiva. Gopis had worshipped Shiva. In Vrindavan you find Gopishwar Mahadeva's temple. Shiva temple is there. In the middle of Vrindavan Dham is Gopishwar Mahadeva. Jai Jai Gopishwar Vrindavan Mahajo. We sing. And Gopis had worshipped that Gopishwar Mahadev, and they had asked for the boon of Shiva that let Krishna be our husband. Therefore the Vaishnavas also worship Shiva and ask for Krishna Bhakti. And Shivaji is pleased, gives that boon, then we can get Krishna Bhakti also. Therefore Vaishnavas worship Shiva. And this is Akapata Krupa. This Krupa, mercy without duplicity. Without duplicity. So we say, Shiva is worshipable. He says, Shiva is worshipable. You worship Shiva as a Vaishnava, Krishna Premi Unnamatta Digamba. He mentioned here. How is static in Krishna praying, dancing, is such a great Vaishnava. So you worship Shiva as a Vaishnava and ask for Krishna Bhakti, that's all right. Don't worship Shiva and ask for this material enjoyment, material wealth, material name and fame, as demons do. As a result of which, you will be destroyed. Shiva grants this thing. That is Sakapata Krupa, the mercy with duplicity. If such things, the material wealth, name, fame, material enjoyment, are good things, why? Jeet then. Lord Shiva himself has no such thing. He is so renounced. Even he has not a home. He remains in cremation ground. If he can grant such things, nice material opulence, why he himself has not such thing? Because he knows that thing. So if someone gets this thing, someone had this thing, he must be destroyed. So demons, they ask for these things and they get it from Lord Shiva, and at last they are destroyed. So one who is intelligent person, he should not ask for all these things from Lord Shiva. Ask for Krishna Bhakti. That's it. Beg for his Akapata Krupa. Krupa without duplicity. Then become Bhakta. भगवान शिव जो कृपा करते हैं वो 2 तरह की होते हैं। एक है सकपट कृपा और दूसरा है अकपट कृपा। एक कपटता के साथ किया हुआ दया
और दूसरा दया बिना कोई कपटता के। जो दानव राक्षस लोग होते हैं वो कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं उनसे कृपा प्राप्त होने के लिए। उनका उद्देश्य होता है उपभोग और ज्यादा से ज्यादा अपने मन, इंद्रिय और शरीर को उपभोग करना। भगवान शिव उन्हें ये सब शक्ति और संपत्ति प्रदान करते हैं। जो कृपा रावण को मिला था यह उनका सकपट कृपा है, मर्सी विथ डुप्लिसिटी, क्योंकि इन सब चीजों से किसी का कल्याण नहीं होता। ये सब उसके अंत का कारण है। सोचने वाली बात है, अगर ये सब शांति दे पाते तो फिर भगवान शिव खुद क्यों इन सब से दूर रहते हैं। वो स्मशानवासी हैं, स्मशान में रहते हैं, कोई महल में नहीं रहते। उनका आभूषण है जहरीला नाग सांप। स्वर्ण के आभूषण को वो धारण नहीं करते। बाघ की खाल उनके वस्त्र हैं। जगत के सारे ऐश्वर्यों को प्रदान करते हैं लेकिन खुद उनसे दूर रहते हैं। भगवान शिव का एक दूसरा कृपा भी है, अकपट कृपा, मर्सी विदाउट डुप्लिसिटी। जब भक्त भगवान शिव को आराधना करते हैं और उनसे भगवान कृष्ण के चरण में प्रेम भक्ति प्राप्ति का मनोकामना करते हैं तो शिव शंभु उसे प्रदान करते हैं। और ये शिव जी का अकपट कृपा होता है, क्योंकि इससे जीव का परम कल्याण होता है। वो अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसीलिए वैष्णव लोग भगवान शिव का आराधना करते हैं उनसे कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, और भगवान शिव उसे प्रदान करते हैं। जैसे कि ब्रज में गोपियां भगवान शिव का पूजा करते थे। वृंदावन के मध्य में गोपेश्वर महादेव हैं, जिन्हें सारे गोपी मिलके पूजा करते थे और यह वर मांगते थे कि भगवान कृष्ण उन्हें स्वामी के रूप में मिले। तुलसीदास ने अपना तुलसी रामायण काशी में लिखा था, भगवान शिव के शरण और सुरक्षा में। इसीलिए गुरुदेव के निर्देश से भुवनेश्वर इस्कॉन में सभी भक्त शिवरात्रि का उपवास पालन करते हैं। ये प्रथा आज भी यहाँ प्रचलित है, जिसमें भक्त लोग मध्याह्न तक उपवास करके फिर अनुकल्प प्रसाद सेवन करते हैं। शिवरात्रि का पालन करने का ये प्रथा और किसी इस्कॉन केंद्र में नहीं है। इसीलिए जब वहाँ के भक्त इसे देखते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि गुरुदेव के निर्देश से एकाम्र क्षेत्र भुवनेश्वर में भक्त लोग शिवरात्रि का उपवास रखते हैं भगवान शिव का कृपा प्राप्त करने के लिए। इस्कॉन में कई ऐसे भक्त आते हैं जिनका पहले आराध्य शिव जी थे। हम यहाँ पर 2 उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें गुरुदेव हमें समझा रहे हैं अपने भक्तों के माध्यम से कैसे शिव जी की उपासना करनी है। गुरुदेव जब शुरुआती दिनों में भुवनेश्वर आए और नयापल्ली में रहने लगे तो नयापल्ली गांव के कुछ लोग उनसे जुड़े और सेवा करने लगे। मंगुली जेना उनमें से एक हैं। मंगुली जेना अपने छोटे समय से ही शिव भक्त थे और हर दिन गांव के बालुंकेश्वर महादेव का मंदिर में जाकर सेवा करते थे। वहाँ का जो पुष्करिणी था उसका साफ सफाई करके मंदिर की मार्जना करते थे। गुरुदेव से मिलने के बाद और उनकी हरिकथा सुनने के बाद वो गुरुदेव के प्रति आकृष्ट हुए और उनके दीक्षित शिष्य बने। उनका नाम हुआ मनोहर दास। उनकी कुछ गुरु भाइयों ने उनको बताया कि अभी तो आप वैष्णव बन गए हो, अभी और शिव जी के मंदिर में जो सेवा कर रहे थे वो करने की जरूरत नहीं है। मनोहर दास ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मैं बचपन से ही हमारे गांव के शिव जी के मंदिर में सेवा करता रहा हूँ, अब मैं क्या उसे बंद कर दूं? गुरुदेव ने कहा, आप आज वैष्णव बने हो, चैतन्य महाप्रभु के इस संकीर्तन आंदोलन में जुड़े हो सिर्फ इसीलिए कि आपने इतने साल शिव जी का सेवा किए हैं। उन्हीं के प्रकृत कृपा, अकपट कृपा प्राप्त होकर आज आप भक्त बन पाए। इसीलिए उनका सेवा कभी मत छोड़ना, जीवन भर अपना ये सेवा करते रहना। जब भी आप भगवान शिव की सेवा करोगे, उनको प्रणाम करोगे तो उनसे एक ही चीज मांगना, कृष्ण भक्ति, और दूसरा कोई चीज मत मांगना। और मनोहर दास ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक गांव के शिव जी के मंदिर में अपना सेवा करते रहे। ठीक वैसे ही नयापल्ली के एक और बासी मालिनी देवी दासी, जो एक दिव्यांग थे और गुरुदेव के आश्रित हुए, उनका भी गुरुदेव से प्रश्न था कि मैं बचपन से शिव जी के लिए फूल से माला बनाकर मंदिर को बेचती हूँ, अभी मेरा दीक्षा होने के बाद मैं क्या करूँ? तो गुरुदेव ने उनको निर्देश दिया कि आप अपना माला भेजना मत बंद करना, आप शिव जी को हर दिन माला भेजते रहिए और उनसे सिर्फ एक ही चीज मांगिए, कृष्ण भक्ति। यद्यपि ये निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं है,
बल्कि एक भक्त को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। लेकिन हमें इससे पता चलता है कि भक्त लोग जब भी भगवान शिव का पूजा करें तो उनसे सिर्फ कृष्ण भक्ति का ही प्रार्थना करें। आगे के दिनों में गुरुदेव के कुछ और लीलाएं उनके शिष्यों को लेकर शिव तत्व के ऊपर, जिसे हम प्रकाश करेंगे। हरे कृष्णा।